Welcome students. In today's lecture we are taking the revision of electrochemistry topic. Let's start. Question number 1. See, if you are given that the solution of Sn2 plus is diluted by 10 times, then reduction potential of this Sn2 plus slash Sn will increase or decrease by some value. So first of all, concentration of Sn2 plus is diluted 10 times. या तो फिर आपको दे दें क्या कंसंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस डिक्रीजेस बाय 10 टाइम्स, मतलब सेम चीज ही होगी. ओके, तो कंसंट्रेशन ऑफ Sn2 प्लस यहाँ पे 10 टाइम्स डाल्यूट किया है. तो इससे क्या होगा कि जब भी हम 10 टाइम्स डाल्यूट करें तब concentration of Sn2 plus becomes 10th part of initial. Suppose initial is 1 molar, तो 10th part होगा 1/10 molar. सो ये होगा फाइनल कंसंट्रेशन, और मैं बोल रहा हूँ इनिशियल होगा 1 मोलर, तब जाके 1/10 हुआ ना. अगर ये 2 मोलर लेते तो 2/10. ओके, अरे सॉरी 2/20. ओके, 10 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है ना, इतना ध्यान रखो. अब आपको फाइंड आउट करना है रिडक्शन पोटेंशियल. सो फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ हाफ सेल. It is Sn2 plus aqueous plus 2 electrons gives Sn solid, so that here we will apply the Nernst equation. It is E Sn2 plus Sn, like E cell, equals E0 Sn2 plus Sn minus 0.059 by 2 number of electrons which are transferred, logarithm of only 1 by Sn2 plus. Only ions are considered here, and now initial is 1 molar, so final is 1/10. So E0 value minus 0.0295 multiplied by log of 1 upon 1/10. So this will be log 10, and we know that log 10 is 1. Okay, so E0 minus 0.0295. ओके, सो इसका मतलब ये होगा, चलो इसको हम 10⁻³ के पावर में हम लेते हैं. क्यों? बिकॉज यू आर गिवन मिली वोल्ट्स. देख लो चारों ऑप्शंस में मिली मीन्स 10⁻³ सो दैट हियर E0 is subtracted by 29.5 millivolt. That will be the final potential. So that is you are asked. The reduction potential will increase or decrease. Negative sign means decreases. तो decreases वाले दो options A and D. तो decreases हो रहा है कितने पावर से? 29.5 millivolt के मैनर में decrease होगा. This is our answer. Next, atomic weight of Fe is 56. So weight of Fe deposited from FeCl3. अब देखो FeCl3 दिया है, so we can write Fe3 plus 3 electron gives Fe. Okay, so इसका कंक्लूजन क्या होगा? जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इतने फेराडे पास करो, और यहाँ पे 1 Fe, so we are getting 1 mole of Fe. Simple. But here you are given that 0.6 Faraday electricity is passed. Then how many moles are formed? So 0.6 by 3. So it is 0.2 mole. Okay. So 1 mole means how much mass? 56, and you are asked the mass. So double of 56 is 112, and 1 point cut. So it is 11.2 gram B Bombay. Okay. Next is same quantity of current is passed through the molten NaCl and molten cryolite containing Al2O3. तो आपको याद होगा स्टूडेंट्स, molten NaCl and Al2O3 plus cryolite. This is the Hall-Héroult process, so that we are getting the aluminium from Al3 plus molten state, and here sodium metal is formed.
and here already you are given that same quantity of current is passed throughout the molten NaCl and Al2O3 plus cryolite. So students, whenever same amount of electricity is passed, then at that time remember that I into T by 96500. This is the number of Faraday which are passed. Both will be similar. चलो अब मास ऑफ Na, उसका फॉर्मूला देख लो. फॉर्मूला होगा वी नो वेरी वेल AIT by N into 96500. Similarly here also mass of aluminium equals again AIT divided by N into 96500. Okay, and here IT upon 96500 will be similar for both of the cases. Okay, so mass of aluminium divided by mass of Na. जो फाइंड आउट करना है वो न्यूमरेटर में रखो जिससे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे होगा ए आई टी अपॉन एन इंटू 96500 डिवाइडेड बाय अगेन ए आई टी अपॉन एन इंटू 96500. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आई टी अपॉन 96500 दोनों केस में वो कैंसिल हो जाएगा. सो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 27 एंड उसकी वैलेंसी 3. Okay, this is A by N for aluminium. Similarly, A by N for sodium, it is 23 by 1. So that the mass of aluminium equals 397. So it is 9 by 23 and multiplied by mass of silver, mass of sodium, and sodium का mass यहाँ पे आपको दे दिया है 4.6. तो students first of all पता होना चाहिए 23 2s 46, but here you are given 4.6, so our answer will be 0.2. So 9 multiplied by 0.2, so it will be 1.8 grams. Okay, and our answer will be C. Next, silver is removed electrically from 200 ml 0.1 normal solution of AgNO3 by a current of 0.1 ampere. So question is, how long will it take to remove the half of the silver from the solution? मतलब जितना ओवरऑल सिल्वर दिया है आपको Ag, उसका हाफ ही आपको फॉर्म करना है. So for that you are given 200 ml 0.1 normal AgNO3. First of all, charge of Ag is 1 plus as well as NO3 has 1 minus. So normal, that is molar, both will be similar. तो यहाँ पे जो 0.1 नॉर्मल दिया है वही होगा 0.1 मोलर. और अब मोलारिटी का फॉर्मूला अप्लाई करो. सो मोलारिटी इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर. सो नंबर ऑफ मोल्स कितने, किसके, AgNO3 के. चलो, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 उसको सब्जेक्ट बनाओ. तो मोलारिटी कितनी, 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम 200 ml बट इन लीटर, सो इट इज 0.2. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgNO3 यहाँ पे होंगे 0.02 मोल्स. अब इसके आपको हाफ ही चाहिए, मतलब कितना चाहिए आपको, 0.01 मोल ऑफ सिल्वर मस्ट बी डिपोजिटेड. सो द number of moles of silver उसका फॉर्मूला होगा IT अपॉन N इंटू 96500. नंबर ऑफ सिल्वर आपको कितने चाहिए थे, कितने टोटल थे 0.02, और यहाँ पे उसके हाफ मतलब 0.01 चाहिए. सिल्वर की वैलेंसी 1 मल्टीप्लाइड बाई 96500 एंड डिवाइडेड बाय, अब आपको 0.1 एम्पियर करंट दे दिया है. टी टाइम इज आस्क्ड, how long will it take to remove the half of the silver from the solution. Okay, so here 0.01 by 0.1. हमारी स्क्रीन जाती रही. Okay, so 0.01
by 0.1 it is 0.1 and 1 point cut, so overall answer will be 9650 seconds, and hence there is no option here. Again 200 ml, 0.1 ampere, it is in denominator. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आंसर आपको नहीं दिया है 9650 seconds. Next, an electric current is passed through the silver voltmeter connected to a voltmeter. The cathode of the silver voltmeter weighed 0.108 gram more at the end of the electrolysis. So volume of oxygen evolved. तो मतलब एक जगह पे सिल्वर यूज किया और दूसरी जगह पे वाटर यूज किया, मतलब एक जगह पे सिल्वर का डिपोजिशन होगा और दूसरी जगह पे वाटर का होगा, जिससे आपको एनोड पे आपको ऑक्सीजन गैस मिलेगा. अब देखो, तो इसका मतलब ये है कि सिल्वर की रिएक्शन क्या होगी. सो Ag++ electron gives Ag, means by passing 1 Faraday we will get 1 mole, and 1 mole means how much mass. सिल्वर का एटॉमिक मास है 108 ग्राम. एक्चुअली एटॉमिक मास दे देंगे, यहाँ पे दिया नहीं है, बस आपको एटॉमिक मास दे देंगे. ओके, इसका तो 108 ग्राम के लिए कितना 1 फेराडे, तो यहाँ पे कितना दिया है आपको 0.108 ग्राम, मीन्स हाउ मच फेराडे. सो आंसर इज 0.001 फेराडे. साइड में रखो इसको. यहाँ पे आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, तो याद करो एनोड की रिएक्शन. वाटर गिव्स 2H प्लस 1/2 O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका मतलब ये होगा whenever we are passing 2 Faraday then we are getting half mole, बराबर. and here if we take 0.001 Faraday then how many moles are formed. So 0.001 divided by 2 multiplied by 1/2, तो ये होगा 0.001/4. इतने मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व्ड. ओके, ऐसे ही रखो. क्यों? क्योंकि हमें पता है, आपको पूछा है वॉल्यूम एट एसटीपी, तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, इट्स 22.4. सो वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इट विल बी 0.001 divided by 4 multiplied by 96500 multiplied by 22400. क्यों ऐसा किया? क्योंकि यहाँ पे देखो सब ऑप्शन सेंटीमीटर क्यूब में ही दिए हैं, तो जब भी आपको आंसर सेंटीमीटर क्यूब में देता हूँ, हमने 2.4 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. तो पहले तो 3 पॉइंट कट कर दो, तो ये होगा 2.4 एंड डिवाइडेड बाय 4. तो 4 से डिवाइड करेंगे, इससे आपको आंसर मिलेगा 5.6. hence C is the correct answer. So this much volume of oxygen gas is evolved. Next, अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के बेस पे है ये क्वेश्चन. इफ X is the specific resistance, उसका सिंबल है रो, and M is a molarity, then molar conductivity. तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद करो. इट इज 1000 मल्टीप्लाइड बाय कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी. मोलारिटी इज गिवन कैपिटल M 1000. अब साइड में कप्पा का मतलब क्या है. सो कप्पा इक्वल्स G इंटू L बाय A. कप्पा इक्वल्स G इंटू L बाय A. G का मतलब क्या है 1/R इंटू L बाय A. सो कप्पा इक्वल्स 1/R इंटू L बाय A. अब कप्पा की जगह पे हम 1/R लिखेंगे. ओके, या तो फिर ऐसा करो, चलो यहाँ पे एक ही टर्म में चेंज करना पड़ेगा. अब देखो कप्पा है क्या, इट्स अ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस.
sorry, rho is a specific resistance and kappa is 1 by rho. तो जस्ट कप्पा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 1 by rho because k is specific conductance. ओके इट्स अ 1 by rho. सो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ 1000 और इसके लिए x सिंबल दिया है rho equals x into m. Hence our answer is B Bombay 1000 divided by m into x. Next question. See, variation of resistance are with increase in cell constant. तो करेक्ट ग्राफ कौन सा है? तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या है? R equals rho into L by A. ओके इसके एडिशन में या तो सब्सट्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं दी है, सो हेंस वी कैन राइट इक्वल्स 0. whenever you are given the graph, so at that time we will apply what thing? Y equals mx plus c. C is intercept is 0. So if intercept is 0, so at that time we can say here graph will start from the origin. अब origin से start होते ग्राफ कौन से? दो C and D. तो इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर है. वैसे तो हम देखें तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन सेम ही है. सो R y एक्सिस पे ले लो, ओके और x एक्सिस पे हम लेंगे L by A, L लेंथ A एरिया, सो द स्लोप विल बी रो. ओके यहाँ पे दोनों आंसर होंगे C and D. नेक्स्ट, the following are the some facts about the electrolytic conduction. See, lambda m decreases with under root c due to increase in the inter-ionic attraction between the ions. तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, lambda m और अंडर रूट सी, तो एक्चुअली एक ग्राफ आपको कैसा मिलता है? स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप. तो जैसे जैसे लैम्बडा एम डिक्रीज हो रहा है, वेन एवर अंडर रूट सी जब इंक्रीज होगा तब, तो वो किसके रीजन से? इंटर आयोनिक एट्रैक्शन बिटवीन द आयंस. तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा वैसे वैसे आयंस का कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगा. सो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट. तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बोलना है तो first is correct statement. Next, for weak electrolytes there is a rapid increase in the degree of ionization with dilution. जैसे जैसे dilution होगा तो वो rapid increase होगा. Hence the interionic attraction decreases and lambda m and lambda eq increases rapidly. तो अगर अंडर रूट सी इंक्रीज हो रहा है तो वैसे वैसे आपको ग्राफ कैसा मिलेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो याद करो ऐसा मिलेगा. तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? रैपिड डिक्रीज होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्रीज. सो आवर सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके तो अब ऐसा एक ही ऑप्शन बचा फर्स्ट नंबर वाला, तो सेकंड तो है ही नहीं. चलो 1 2 तो 2 तो हो ही नहीं सकता, 2 तो हो ही नहीं सकता. अब एक ही ऑप्शन बचा. चलो थर्ड देख लेते हैं. लैम्बडा एम इंफिनिटी की साइन है कोई, ये मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी. एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी में वो मिलता कैसा है आपको? तो वेन एवर अ स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड एंड इफ स्ट्रेट लाइन इज एक्सट्रापोलेटेड टू द y एक्सिस देन वी आर गेटिंग द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या तो फिर मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड एट दैट टाइम अंडर रूट सी इक्वल 0. देख लो यहाँ पे अंडर रूट सी तो 0 ही होगा ना. वो जो पॉइंट मिला दैट इज अवर lambda 0 m. Okay, so hence B option is the correct. So first and third are the answers. So now finally we are taking the last question of this session. BaCl2, H2SO4 and HCl values of equivalent conductance are given, that is x1, x2
and x3 all are at infinite dilution. So if specific conductance of saturated BaSO4 is Y, then what will be the value of KSP? Students, KSP का फॉर्मूला क्या होगा? Concentration of Ba2 plus concentration of SO4 minus. ओके, और यहाँ पे जो ब्रैकेट लिखा है ना, दैट इज ऑलवेज द मोलर कंसंट्रेशन. चलो पहले इतना तो क्लियर होना चाहिए. स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज गिवन टू यू, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए हम लैम्बडा इक्यू अप्लाई करेंगे. कौन सा? लैम्बडा इक्यू. तो पहले तो आपको दिया है लैम्बडा इक्यू फॉर सम सब्सटेंसेस. कौन कौन से? BaCl2, H2SO4 और HCl, तीनों के लिए लैम्बडा इक्यू. और चाहिए आपको BaSO4, तो उसकी लैम्बडा 0 इक्यू वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर देते हैं. ओके, और KSP के लिए मोलारिटी चाहिए आपको पहले, तो इतना क्लियर. कंटिन्यू. तो BaCl2 के लिए वैल्यू है x1, H2SO4 के लिए x2 और HCl के लिए x3, और BaSO4 के लिए आपको पूछा है. चलो क्या करेंगे? तो BaSO4 जो आपको यहां पे दिया है, तो BaSO4 में Ba2 प्लस और SO4 2 माइनस, तो आपको ये दिया है. तो अब ध्यान से देखना, तो ये जो BaSO4 है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो चलो जो चाहिए वो पॉजिटिव मिलेंगे, तो Ba और SO4 दोनों चाहिए, तो x1 प्लस x2, और दोनों को एडिशन करने से आपको 2 HCl मिलेंगे, तो वही माइनस कर दो 2x3. सिंपल. तो ये हुआ किसका? BaSO4 की लैम्बडा 0 इक्यू वैल्यू. ओके, अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दिया है, तो लैम्बडा m इक्वल्स क्या होगा? 1000 मल्टीप्लाइड बाय कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी. चलो तो लैम्बडा 0 m यहाँ पे ले लो और मोलारिटी को सब्जेक्ट बनाओ, तो 1000 इंटू k, कप्पा इज गिवन टू हियर y, दिया है ना, कप्पा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, एंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा 0 m, और वो वैल्यू आपको, लेकिन यहाँ पे आपको लैम्बडा 0 इक्यू दिया है और यहाँ पे लैम्बडा 0 m चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये जो लैम्बडा 0 इक्यू है, अगर उसका फॉर्मूला अगर हम लिखे लैम्बडा 0 इक्यू का, तो जो भी फॉर्मूला होगा 1000 इंटू कप्पा बाय नॉर्मलिटी होगा. ओके, और हमें पता है नॉर्मलिटी इक्वल्स मोलारिटी इंटू n. इजी. सो Ba का चार्ज 2 प्लस SO4 का चार्ज 2 माइनस, सो n फैक्टर विल बी 2. तो n फैक्टर यहाँ पे 2 होगा, तो नॉर्मलिटी की जगह पे अगर हम मोलारिटी लिखें, तो 1000 इंटू कप्पा डिवाइडेड बाय मोलारिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, और मोलारिटी को सब्जेक्ट बनाओ, तो मोलारिटी को सब्जेक्ट बनाने से आपको मिलेगा, तो बंद करेंगे आप, तो मोलारिटी इक्वल्स क्या होगा? 1000 दैट इज 10⁻³ कप्पा इज अ y एंड डिवाइडेड बाय लैम्बडा 0 इक्यू व्हिच इज मल्टीप्लाइड बाय 2, और ये होगा x1 प्लस x2 माइनस 2x3. अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, ये मोलारिटी किसकी? BaSO4 की. तो एक BaSO4 में से आपको कितने SO4 2 माइनस और कितने Ba2 प्लस मिलेंगे? तो एक BaSO4 में से आपको एक Ba2 प्लस और एक SO4 2 माइनस मिलेगा. तो अगर मैं इस मोलारिटी को m बताऊं, तो यहाँ पे m और m ही आएगा, मतलब m मल्टीप्लाइड बाय m, मतलब ये जो दिया है उसका स्क्वायर, तो ये होगा 10⁻6 इंटू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 एंड x1 प्लस x2 माइनस 2x3 उसका होल स्क्वायर. दैट इज आवर आंसर, बी बॉम्बे.
अगेन 10⁶ इंटू वाई स्क्वायर, और उसमें जस्ट मिनट 4 नहीं दिया है ना. ओके, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. 10⁶ y square 4 and x1 plus x2 minus 2x3 का whole square. Yes, done. So C is the correct answer. Okay students, so finally today's lecture is over. Goodbye.